Good morning, students. So now our next topic in chapter number 6 is what if analysis tool. Now you must be wondering, children, what is this what if analysis? What if analysis क्या होता है? Actually सुनो, what if analysis Excel में ये एक tool है which will allow you to use different sets of values in one or more formulas. ध्यान से सुनो, what is this what if analysis क्या है? It is a tool of Excel which allows you to use different sets of values. मतलब अलग अलग values के जो different sets हैं वो एक या एक से ज़्यादा formulas में अगर आपको explore करना है, ठीक है, all the various results, तो उसके लिए what if analysis tools हम use करते हैं. By using these tools you can do what if analysis to analyze. किस लिए इसका use क्या है? To analyze complex data or two different sets of data on the same subject. Understand properly. What is the use of this what if analysis? इससे आप क्या कर सकते हो? Complex data हो या फिर दो से ज़्यादा sets of data हो same subject में, you can analyze that. You can also specify a result that you want a formula to produce. कोई भी formula से क्या result निकालना है, you can do that and then determine what sets of values will produce that result. उसके बाद ये पता लगाना है कि उससे कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है. सो इन जनरल द व्हाट इफ एनालिसिस इज व्हाट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन द सेल्स टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द फॉर्मूलाज ऑन द वर्कशीट. दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इफ एनालिसिस. अंडरलाइन एवरीवन, ऑल ऑफ यू. It is a process of changing the values in the cell to see how those changes will affect the outcome of the formulas on the worksheet. Three kinds of what if analysis tools come with Excel. Excel में जो है 3 टाइप्स के what if analysis tools होते हैं. कौन कौन सा है? First is scenario manager, goal seek and data table. These 3 tools are available in these 3 kinds of what if analysis tools, they are coming in the Excel. Now let us discuss these tools one by one. First is what? Scenario manager. देखो, scenario manager is what? It is an important tool of Excel which you use to test the what if questions. ये आप किस लिए यूज़ करते हो? What if questions को टेस्ट करने के लिए. It will enable you to manage and view data from different input values. For example, अगर आपको कैलकुलेट करना है the effect of different interest rates on an investment, मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसका different interest rates you want to calculate. So you could add a scenario for each interest rate and quickly view the results. A scenario क्या है? A scenario is a set of values that you enter in a worksheet to perform the calculations. ठीक है, ये क्या है? एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो हम लोग वर्कशीट में डालते हैं ताकि हम कैलकुलेशंस कर सकें बहुत ईजीली. सो यू कैन ईजीली क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ सिनेरियोज एंड नेम दैम एज पर योर चॉइस. You can create as many scenarios as you want and then compare them without changing the values manually. उसके बाद manually change किए बगैर आप compare कर सकते हो. Suppose you want to take a loan of amount 50 lakhs from a bank and different banks offer you interest rates as shown in the figure. Suppose आपको 50 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए, तो आप डेफिनेटली बैंक में जाओगे इंक्वायरी करने के लिए कि मान लो मुझे 50 लाख लोन चाहिए, तो बैंक आपको बोलेगी कि आपको इतना इतना इंटरेस्ट रेट देना है. तो एक बैंक के पास आप नहीं जाओगे, डेफिनेटली यू विल विजिट टू डिफरेंट बैंक्स फॉर सीइंग द इंटरेस्ट रेट्स. सो ऑल द बैंक्स विल गिव यू योर interest rates. Now see, HDFC बैंक का सिनारो नंबर 1, लोन अमाउंट इज हाउ मच? 50 लाख. इंटरेस्ट रेट कितना है? HDFC बैंक ने आपको बोला है कि 12% इंटरेस्ट होगा. NPER इज 360, टाइप 0. ठीक है. अब SBI बैंक ने आपको बोला है 9% इंटरेस्ट होगा. ICICI बैंक ने आपको इंटरेस्ट बोला है 11%. और लास्ट में IDBI बैंक हैज़ टोल्ड यू ऑफ चार्जिंग हाउ मच? 8% इंटरेस्ट. अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? यू कैन क्रिएट द अबाउ सिनेरियोज टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द EMI बेस्ट सूटेड फॉर यू. आप इस सिचुएशन में देख सकते हो कि कौन सा EMI मेरे लिए बेस्ट हो सकता है. तो सिनेरियोज क्रिएट करने के लिए आपको एक्सेल खोलना पड़ेगा. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स ओपन करने हैं? एक्सेल की वर्कशीट ओपन करो और ये सारा डेटा जैसे यहाँ पे फिगर 6.11 में दिया हुआ है एज इट इज़ आपको क्या करना? डेटा टाइप कर देना है.
और उसको टाइप कैसे करना, एज शोन इन द फिगर 6.12. सी हियर इन द फिगर 6.12 इनिशियली एंटर इन इनिशियल डेटा, पहले आप इनिशियल डेटा एंटर करोगे ना. सो एंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला इन सेल B5. देखो, ओपन द एक्सेल वर्कशीट एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर 6.12. आप एक्सेल वर्कशीट खोलोगे और इस तरह से आप डेटा क्या करोगे, एंटर करोगे. तो सेल B5 में जाना है. देखो ये B है, दिस इज 5. B1 में क्या है, लोन अमाउंट 50 lakhs इज गिवन टू यू. इन B2 यू आर मेंशनिंग इंटरेस्ट रेट. इन B3 यू आर मेंशनिंग NPER. इन B4 यू आर मेंशनिंग टाइप 0. और B5 में क्या होगा, B5 में आपका EMI है. तो EMI आपकी कितनी आएगी, मान लो अगर आपने 50 lakhs का लोन लिया और 50 lakhs लोन लेने के बाद बैंक इज चार्जिंग 12% इंटरेस्ट, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि 12% इंटरेस्ट मान लो मुझे बैंक ले रही है, तो मुझे हर महीने में EMI कितनी आएगी. आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ दिस EMI. तो एवरी मंथ यू नीड टू पे सम EMI. उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम लोग इसमें देखेंगे सिनेरियो में. तो B5 में जाके आपको ये टाइप करना है PMT, ठीक है, इन द ब्रैकेट इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट ऑब्लिक 12 कॉमा NPER कॉमा लोन अंडरस्कोर अमाउंट 0 टाइप. आपको ये पूरा टाइप करना है ब्रैकेट के अंदर लगा के, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे, आपको एंटर प्रेस करना है टू गेट द कैलकुलेटेड वैल्यू एज शोन इन द फिगर 6.13. देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई है कि नहीं, फिगर 6.13 में. कैन यू सी दिस वैल्यू, हाउ दिस केम. फर्स्ट यू हैव टू टाइप दिस एंड प्रेस एंटर बटन. सो द वैल्यू इज नेगेटिव. वैल्यू कौन सी है तुम्हारी, द वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो आएगी माइनस में. इज द आउटगोइंग अमाउंट पर मंथ. सो द वैल्यू इज नेगेटिव एज मनी इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, क्योंकि मनी आपके जेब से ज़्यादा जा रहा है. सो इट कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड एज 51,430. नाउ सेलेक्ट द इनिशियल वैल्यूज इन द वर्कशीट सेल्स B1 to B4. अब देखो आपको क्या करना है, आपको इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट करनी है B1 से लेके B4 तक. क्लिक ऑन डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर. सिनेरियो मैनेजर में डेटा पे क्लिक करना है. व्हाट इफ एनालिसिस में द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है. दिस इज द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स. चूज ऐड, देखो यहाँ पे ऐड की बटन है ना, आपको यू चूज ऐड. द ऐड सिनेरियो डायलॉग बॉक्स विल ओपन एज शोन इन द फिगर 6.14. एंटर अ नेम फॉर अ न्यू सिनेरियो इन द सिनेरियो नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है. वहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल एंटर HDFC बैंक. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ अ नेम. यहाँ पे देखो HDFC सिनेरियो नेम में आपको HDFC बैंक टाइप करना है, ठीक है. That clearly identifies the scenario. This name is displayed in the scenario manager to choose from all the available scenarios. Enter some information from the scenario in the comment box or stay with the default text. This is optional. Some information आपको same information कहाँ करनी है, about the scenario in the comment box. Comment box है, but ये optional है, कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो. देन उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करो. द सिनेरियो वैल्यूज डायलॉग बॉक्स appears as shown in the figure 6.15. Again click on OK to create a scenario with the displayed values. Create another scenario by choosing add from the scenario manager dialog box as seen in the figure 6.16. एक और एक आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि HDFC बैंक के बाद आपको SBI बैंक का भी ऐड करना होगा ना. सो क्रिएट सेपरेट सिनेरियोज फॉर SBI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक with the different interest rates 9%, 11%, 8%. To change the interest rate, change the value of cell $B $2. आपको इस सेल का वैल्यू चेंज करना है in the scenarios values. Dialog box as 0.09, 0.11 and 0.08 respectively. आपको इस तरह से वैल्यूज चेंज करनी है. Just look at the figure 6.15. Now you can compare the EMIs offered by all the banks by easily switching between the 4 scenarios. To switch into a scenario, select it and click on the show button in the scenario manager dialog box as shown in the figure 6.16. The selected scenario will display the values in the worksheet. To edit a scenario name or value, click on edit in the scenario manager dialog box. Then our next topic is what? Goal seek. See,
You have understood about the scenario manager. Now see about goal seek. Goal seek is another useful data analysis tool of Excel. It is used, इसका use क्या है? It is used to set a goal to find the optimum value for one or more target variables given with the certain conditions. It allows you to try different values in the formulas to arrive at a solution for the input value. In other words, goal seek is another what if analysis tool. गोल सीक क्या है? एक टाइप का दूसरा व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स है जो कि आपको हेल्प करेगा सो दैट यू ऑब्टेन द इनपुट वैल्यू दैट रिजल्ट्स इन द टारगेट वैल्यू दैट यू वांट. सपोज यू वांट टू टेक अ लोन ऑफ अमाउंटिंग ₹6 crores and repay it in 25 years. Also you can pay an EMI of ₹50,000 only. So you want to know the interest rate of the loan. In such a situation use goal seek to get the value. ठीक है, अब गोल सीक कैसे फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट स्टेप्स. कैसे करना है? एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर 6.17. पहले आपको एक्सेल शीट में इस तरह से डेटा टाइप करना है. उसके बाद फॉर्मूला टाइप करना है. यहाँ पे देखो B5 में PMT इंटरेस्ट अपॉन दिस सेम. चूज़ द डेटा व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक. द गोल सीक डायलॉग बॉक्स ऐसा देखो ऐसे आ जाएगा फिगर 6.18 में जो दिया हुआ है. सेट द सेल. अब आपको यहाँ पे सेल सेट करना है. Enter the reference of the cell that the formula has. Click on the cell B5. देखो फॉर्मूला में ये है ना B5 है, तो आपको इस तरह से इसको $B5 टाइप करना है. टू वैल्यू. अब टू वैल्यू में क्या करना है? एंटर द वैल्यू दैट यू वांट टू अचीव एज ए न्यू रिजल्ट. तो आपका जो लोन अमाउंट है, सो एंटर माइनस द वैल्यू शुड बी नेगेटिव बिकॉज EMI इज वॉट इज द मनी दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट. उसको आपको माइनस में एंटर करना है. So by changing the cell में जाके enter the reference for the cell that contains the value you want to adjust in order to reach the target. ठीक है, तो आपको क्या करना है? by changing cell में डाल के you enter the reference for the cell that contains the value, जिसमें value हो you want to adjust in order to reach the target. Then you have to click on B1. Click on OK. The goal seek status dialog box will appear as shown in the figure 6.19. Click on OK and observe the output as shown in the figure 6.20. This will be your EMI. See, as it is given in the figure 6.20. Right? All of you please do this. Next is data table. Now this data table we will study in our next video. Thank you for watching.